Hello guys, welcome back once again to my YouTube channel. Thank you for watching this video. So today I have taken up one good question from a chapter, that is the collision and conservation of momentum. I know this is not in continuation with the kinematics question that I was uploading, but when I came across this question I think I should discuss it in this video. So it will be helpful for you all. This is not any previous year question, but this is a good question which will clear many of your concepts. So let's, without any further delay, move on to the question. So I'll not write line by line the question because it will be a very lengthy process. I will just jump into the question and give you the question in the form of a diagram, show you that question and give you the data that has been given in the question. So जो हम लोगों को बोला गया है वो ये है कि एक बॉल है, ये इसको एक टावर के ऊपर रखा गया है. इस टावर का हाइट है 3.5 मीटर्स. ये हम लोगों को क्वेश्चन में बोला गया है. एंड लेट अस अज्यूम द मास ऑफ दिस बॉल एज m1. आई एम अज्यूमिंग इट. द वैल्यू ऑफ m1 इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन, दैट इज 1 kg. इट हैज बीन गिवन इन द क्वेश्चन. द वैल्यू ऑफ दिस मास m1 is 1 kg. What has been said in the question is that इस बॉल को हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ऐसे फेंका गया with a velocity 7 meter per second. So I am assuming that velocity 7 meter per second as u equals to 7 meters per second as per the question. वॉल्यूम मतलब बॉल को ऐसे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फेंका गया. ऐसे जब बॉल को फेंका गया तो व्हाट विल हैपन, ये ऐसे तो स्ट्रेट जा नहीं सकता. दिस इज द ग्राउंड लेवल. दिस इज द ग्राउंड लेवल. सो व्हाट हैज हैपेंड हियर इज दैट यहाँ पे ग्राउंड लेवल पे एक कहा गया है जो वो ये कि एक वेज रखा हुआ है. यहाँ पे 45 डिग्री एंगल है इस वेज का विद द हॉरिजॉन्टल. दैट इज, let us assume this angle as theta. Theta is 45 डिग्री. ये एंगल है 45 डिग्री. एक और चीज बताया गया है कि इस वेज का जो मास है, let us assume that mass as m2. ये m2 का वैल्यू 3 kg है. The value of this mass is 3 kg. अब अगर मैंने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसको फेंका तो ये हॉरिजॉन्टल ज्यादा दूर तक नहीं जाएगा, थोड़ी देर तक जाएगा. उसके बाद क्या होगा, दिस विल trace a parabolic path. In the horizontal direction it has been thrown, now it will follow a projectile motion and will fall down in a parabolic path. तो क्या हो रहा है, क्वेश्चन में बताया गया है कि पैराबोलिक पाथ ऐसे फॉलो करके ये जाके ये बॉल जाके इस वेज के ऊपर गिरता है in this parabolic path. So what will happen now, this is an elastic collision. In the question it has been told the collision here is elastic collision. अब पूछा ये गया है कि ये collision होने के बाद just after the collision what will be the velocity of this ball and of this wedge. और एक और बात बताया गया है कि wedge slide भी कर सकता है. So what will happen, just assume the physical phenomena. So in order to, let us first assume the directions. In order to tackle any physics question properly, what you should approach, what should be the approach, what should be the methodology. हम लोगों को पहले इमेजिन करना पड़ेगा what physical phenomena is happening over here. तो प्रोजेक्टाइल मोशन से ऐसे नीचे गिरता है, फिर जाके इस वेज से टकराता है. an elastic collision is happening, so the bodies will separate. Now what will happen is that, let us assume this is the ball, this black pen. Now this black pen is touching this wedge and this is the wedge. क्या हो क्या रहा है कि वेज पे जाके पैराबोलिक पाथ में गिर रहा है, टकरा रहा है. आफ्टर दिस इलास्टिक कलिजन दे आर मूविंग, दे आर सेपरेटिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन. ऑपोजिट डायरेक्शन में सेपरेट हो रहा है. आई थिंक यू कैन अज्यूम इट. सो आई एम अज्यूमिंग द वेलोसिटी ऑफ दिस बॉल आफ्टर द कलिजन एज v, and also the velocity, let us assume this as v dash, and the velocity of the wedge after the collision as v. Now what is happening here is that I am also assuming the directions. अगर आपने डायरेक्शन कन्वेंशन इस क्वेश्चन में नहीं लिया तो आपका क्वेश्चन ही पूरा गड़बड़ हो जाएगा. So I am taking the negative x axis as negative direction, positive x axis as positive direction.
ऑल्सो एक और बात यहाँ पे हो रहा है, जो दो तो डायग्राम्स यहाँ पे मुझे आपको बताना पड़ेगा, सो यू कैन अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन बेटर. Let us first draw this diagram. Now I am drawing the diagram when the ball is approaching the wedge. ये बॉल है, ये इस वेज को अप्रोच कर रहा है इस डायरेक्शन में, और ये एक डायरेक्शन है, ये भी एक डायरेक्शन है. क्या होगा कि दिस इज 45 डिग्री, द हॉरिजॉन्टल एंगल इज 45 डिग्री. सो व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर इज दैट दिस इज 7 meters per second, this is also 7 meters per second. So what is happening, what will the value of this angle? अगर ये 45 डिग्री हुआ तो obviously ये 7√2 होगा, the approaching condition. And after the collision, what is the condition? This is the wedge, this is after this collision, this is 45 degree, and this is v dash by √2. Why √2 has come here, I will tell you in this question. अगर ये वैल्यू v है इस डायरेक्शन में, so अगर ये एंगल 45 डिग्री है, so the cos component of 45 degree, that is the base, that will be v dash by √2. और ये क्या होगा, ये भी होगा v dash by √2, क्योंकि ये एंगल 45 डिग्री है और ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में, that is v. Obviously, I think now it is clear both the condition. This is the approaching condition, this is the condition after separation. Now in order, मैं यहाँ पे रब कर रहा हूँ इस चीज को. अब क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में, ये बात ये है कि पहले फिजिक्स के किसी क्वेश्चन को टैकल करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले मैंने कंसेप्ट को आइडेंटिफाई कर लिया. डायग्राम ड्रॉ करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो ये डायग्राम मैंने दोनों ड्रॉ किया. नाउ द सेकंड स्टेप टू अप्रोच इन फिजिक्स न्यूमेरिकल इज दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट आर द कांसेप्ट्स इन्वॉल्व्ड. पहला कांसेप्ट, यहाँ पे एक मोमेंटम कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट तो लग रहा है, ये देख के ही पता चल रहा है हम लोग को. सो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, COM. इलास्टिक कलीजन, द कलीजन इज इलास्टिक. And also the third concept involved in this question is that is, I think it is cutting in the video. Okay, now it is okay. So now the third concept is coefficient of restitution. The coefficient of restitution. मैंने कंसेप्ट भी आइडेंटिफाई कर लिए, क्या क्या कंसेप्ट इस क्वेश्चन में इन्वॉल्व हो रहा है. नाउ कम्स द थर्ड स्टेप. क्या है वो थर्ड स्टेप? अब इन कॉम्बिनेशन ऑफ दिस कॉन्सेप्ट्स, अब आपको कॉन्सेप्ट्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा. सो नाउ आई एम ड्राइंग द कॉन्सेप्ट्स. द फर्स्ट कॉन्सेप्ट, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम कॉन्सेप्ट, आई एम यूजिंग. देयर आर टू वेरिएबल्स v and v dash, so I have to form two equations to solve this question. पहला कंसेप्ट, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. इनिशियल मोमेंटम इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम, बिकॉज दिस इज एन इलास्टिक कलेक्शन, मोमेंटम विल बी कंजर्व्ड. सो व्हाट इज हैपनिंग इन इनिशियल कंडीशन, बॉल मूव कर रहा था, वेज रेस्ट पे था, तो वेज अगर रेस्ट पे था इनिशियल कंडीशन में, वेज का मोमेंटम 0, और इनिशियल कंडीशन में बॉल का मोमेंटम m इंटू वी, दैट इज m1 इंटू यू. m1 क्या है 1 kg और u क्या है 7, तो 7 इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम. मैंने कहा था कि नेगेटिव एक्स एक्सिस के डायरेक्शन के मोशन में जो आ रहा है, मतलब ये बॉल आफ्टर दिस कलीजन, दैट विल बी माइनस, बिकॉज दिस इज द नेगेटिव डायरेक्शन. आई हैव टोल्ड यू. साइन कन्वेंशन नहीं लिया आपने तो ये क्वेश्चन आपका गड़बड़ हो जाएगा. माइनस v डैश बाई √2, और वेलोसिटी और एक मास भी था इस बॉल का, दैट इज 1, सो मैंने v डैश बाई √2 लिखा. और इसका क्या होगा 3v, बिकॉज द मास ऑफ दिस वेज इज m2, दैट इज 3 kg, सो इट विल बी 3v. सो व्हाट विल बी द वैल्यू, 7√2 equals to 3v minus, this will be not 3v, this will not be 3v, sorry, this will be 3√2v. 7√2 equals to 3√2v minus v dash. This is equation number 1. I am assuming it as equation number 1. Now let us move on to this part. I am rubbing these two diagrams. Okay, I am writing here below. I am rubbing these values.
कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर इलास्टिक कलीजन इज, इलास्टिक कलीजन के लिए, इलास्टिक कलीजन के लिए कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का वैल्यू 1 होता है। ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, जो मैंने कहा था कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन भी आपको चाहिए क्योंकि सेकंड इक्वेशन आपको यहीं से मिलेगा। तो मैंने अगर वो कंसेप्ट लगाया, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन along the line of impact by velocity of approach along the line of impact। मैंने ये दोनों डायग्राम ड्रॉ किया है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का ये डायग्राम, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन का ये डायग्राम। तो वहां से आपको मिल जाएगा 1 इज इक्वल्स टू, वहां से मुझे मिल जाएगा जो वैल्यू वो ये है कि 1 इक्वल्स टू यहाँ पे v डैश बाई √2, v बाई √2 होगा यहाँ पे, आई एम सॉरी, ये v बाई √2 होगा, प्लस v डैश, ये हाँ v बाई √2 होगा प्लस v डैश, सेपरेशन का है ना, हाँ ठीक है कंसेप्ट। सो हाँ यहाँ पे 7√2 होगा क्योंकि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच तो यही था 7√2। क्या होगा अगर मैं इसको इधर लेकर आऊँगा तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा, मैं दोनों डायग्राम सभी रब कर रहा हूँ, सो मुझे यहाँ से क्या वैल्यू मिला था 7/√2। ओके, सो मुझे यहाँ से मिल जाएगा v/√2 प्लस v डैश। ओके, यहाँ से मुझे मिल जाएगा, ये मैं इधर लिख रहा हूँ 7√2 इक्वल्स टू v/√2 प्लस v डैश। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब तो ये सॉल्व करना बाएं हाथ का खेल हो चुका है। इन दोनों इक्वेशंस को आप सॉल्व कीजिए 1 और 2 को, आपका आंसर आ गया। सो लेट मी कैलकुलेट सॉल्विंग 1 and 2। सॉल्विंग 1 and 2 क्या आएगा, v का वैल्यू यहाँ से, v का वैल्यू आपको जो मिलेगा वो ये आपका यहाँ से आ जाएगा, v का वैल्यू 4 मीटर्स पर सेकेंड, और v डैश का वैल्यू अगर मैंने इक्वेशन में पुट किया तो यहाँ से आएगा v डैश का वैल्यू, इस इक्वेशन में मैंने पुट किया इसको तो 12, तो v डैश का वैल्यू हो जाएगा 12√2 माइनस 7√2, यहाँ से आ जाएगा 5√2 मीटर्स पर सेकेंड। आपका इक्वेशन सॉल्व, आपका क्वेश्चन सॉल्व। सो गाइस, इसी तरह के क्वेश्चंस अगर आपको और चाहिए तो प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल टेक अप अगेन more interesting questions in my channel. So thank you for watching this video and bye guys.